भाई पीछे थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा तो आगे आ जाना। यही है। See, first I would like to thank all the organizers who have conducted this very holy, it is an historic moment in one's life. With looking all of the arrangements, what they have done for this crores of people who have been come here, it is not a small job. I know what organization takes place. They have done a good job. So I am very happy to be a part of this event. Myself, my family, we came. The Honorable Minister for Uttar Pradesh came and met me. Two ministers, Senior Minister, Finance Minister and the Culture Minister, they came and met me in Bangalore. On behalf of the government, they invited me. So I accepted their invitation. It was a great experience. I think I am very happy that entire country, the people from different part of the state have come here and taken place. I could meet a lot of people from all over the country here. I hope this Ganga, Yamuna, Saraswati, these three rivers joining together, I think the experience made us a little bit a great experience, and I hope peace and prosperity will remain all of us. It is all of our belief. Important thing is one's belief. I hope I have prayed the Almighty, Lord Shiva and Ganga, to give us peace in our life. See, this is very important in one's life. Even in Karnataka also, we are doing this Kumbh. It is one's culture. The biggest strength of our country is our heritage, which is not today. From thousands of years, our historians, divine strength have created this. And we all have joined. Sangam. It is not only the water, three rivers water. It is the humanity. All the sections of the society, whether they are rich, whether they are poor, whether they are middle class, everyone. We all have joined here to take the holy dip. We don't believe in any religion. It is all the humanity which all has made us to be united here. One accident caused by mismanagement of the Uttar Pradesh government. I don't want to comment on that issue. Our nation is not a small issue. Let us rectify this. Let us think in a positive way. महाकुंभ में आके मैं ब्लेस फील कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए सबसे पहला तो हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को योगी जी को, क्योंकि
उन्हों का ये आयोजना और उनका निमंत्रण के कारण हम लोग आकर पाए और सिक्किम की तरफ से पूरा सारे सिक्किम की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम को इतना बड़ा इवेंट को ऐसा ऑर्गेनाइज किया है। कल राष्ट्रपति आने वाले हैं यहाँ पे। ये तो कल आने वाला है, मैंने भी सुना, तो मैं शायद ही मैं नॉर्थ ईस्ट के पहले मुख्यमंत्री हूँ कि यहाँ पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। ट्रिप लेकर के आपको कैसा फील हुआ? बहुत ब्लेस्ड फील हुआ पूरा। आफ्टर 144 साल के बाद में आते हैं महाकुंभ, इसमें आना मेरा एक सौभाग्य है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको आना चाहिए, ये महाकुंभ में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबको एक हमारा भाईचारा सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रखना चाहिए बस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। महाकुंभ में आके मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और मैं इसके लिए सबसे पहला तो हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उन्हों का ये आयोजना और उनका निमंत्रण के कारण हम लोग आकर पाए और सिक्किम की तरफ से पूरा सारे सिक्किम की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम को इतना बड़ा इवेंट को ऐसा ऑर्गेनाइज किया है। कल राष्ट्रपति आने वाले हैं यहाँ पे। ये तो कल आने वाला है, मैंने भी सुना, तो मैं शायद ही मैं नॉर्थ ईस्ट के पहले मुख्यमंत्री हूँ कि यहाँ पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। ट्रिप लेकर के आपको कैसा फील हुआ? बहुत ब्लेस्ड फील हुआ पूरा। आफ्टर 144 साल के बाद में आते हैं महाकुंभ, इसमें आना मेरा एक सौभाग्य है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको आना चाहिए, ये महाकुंभ में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबको एक हमारा भाईचारा सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रखना चाहिए बस। ये फतेहगढ़ का है, सेंट्रल जेल फतेहगढ़। ये कंधे वाला है, ये हाथ हैंड वाला। आगरा का तौलिया, फतेहगढ़ के फरसी दरी, नैनी की दरी, ये सब फतेहगढ़। महाकुंभ वाला भी खड़ा है। हाँ देखो दे रहे। और आपके नीचे भदोही लगे, ज्ञानपुर भदोही। चित्रकूट का गमला सीमेंटेड। दोबारा डिमांड की है, पब्लिक मांग की दीवान पेट में। इसमें कई आइटम अभी है। जेल बरेली का है,
सब के लिए जिसके लेना वो ले सकते हैं। फोल्डिंग चेयर है। फतेहगढ़ का अम्ब्रेला है, ये भी ले लेंगे। बता दियो। आगे चिपका है। फेसबुक में थोड़ा कितने की दे रहे हैं? ज्यादातर और लगाया हुआ खाने पीने का भी इधर कोई सिस्टम है नहीं कि बच्चों को भाई कुछ इस बार इतना नहीं है, लास्ट ईयर बहुत अच्छा। हाँ स्कूल में ज्यादा अच्छा इतनी क्राउड है। अब मास्टर साहब ये बताइए अगर कुछ खरीद फिर एक बार मंगाना पड़ेगा और समाप्त होते होते। अचार उचार किधर है? लगाई गई है, किन लोगों द्वारा बनाई गई है और किस तरीके से अभी तक रिस्पॉन्स है, कहाँ से सामान आया है और सब कुछ बताइए इसके। ये सर हमारे यहाँ जो है 28 जेलों से सामान बंदियों द्वारा निर्मित है। और सर प्रदर्शनी हमारा ये जो है हर 6 साल पे लगता है सर यहाँ। अच्छा जी। और सर 28 जिलों से हमारे जो है बंदियों का हुनर कलाकार जो है ये अपने हाथों से बनाया गया सर जो है बंदी बना के निर्मित किए हैं। क्या चीजें हैं सर इसमें हमारे यहाँ आगरा से जो है स्पोर्ट्स शूज है और लेडीज सैंडल है और आजमगढ़ से आपका गिलास है और घरेलू इस्तेमाल हाँ की जी चीजें जी कई जी चीजें हैं। जी सर। और सर अपने यहाँ रायबरेली से आपके लालटेन है मिट्टी का और उधर सर अपने गोरखपुर से कुछ जो है सामान है और हाथी चेहरा है, पीपल के पत्ते बनाया गया है और प्रतापगढ़ से आपके आंवला मुरब्बा अचार है। फिर मैनपुरी से आपके सर तारकसी जो है फिगर है। जी जी। सबसे ज्यादा सामान की डिमांडिंग क्या है, इसका क्या चल रहा है ट्रेंड? इस समय सर हमारे यहाँ फर्नीचर और मथानी वगैरह घरेलू सामग्री सर बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी सर। क्या नाम बता दीजिए। दशरथ प्रसाद नैनी जेल से सर। हमारे प्रदेश की 27 जेलों का सामान यहाँ पर बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए लाया गया है और इसमें बंदियों द्वारा बनाया हुआ सामान है और काफ़ी मात्रा में लोग इसका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं, बिक्री भी हो रही है और वर्तमान में कुछ भीड़ कम आने की वजह से बिक्री का काम थोड़ा सा धीमा चल रहा है। फिलहाल अच्छा प्रदर्शन है हमारा। लगभग कितनी आय हुई होगी इस समय तो जब से प्रदर्शनी लगी है तो लगभग 5 लाख के लगभग हमारी बिक्री हो चुकी है वर्तमान तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामेश्वर पटेल है। क्या पद है? शिक्षक हैं हम। माननीय श्री आलोक कुमार जी हमारे बीच में हैं, परिचित हैं, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। अपनी 3 दिन की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में विश्व भर से हमारी सक्रिय इकाई के लोगों को हम बुलाते, संयोजक भी बुलाए। ऐसा लगभग 950 लोग 3 दिन के लिए इकट्ठा हुए। मैंने कहा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, गुयाना और बांग्लादेश के भी हमारे संगठन के प्रमुख लोग आए। कुछ छोटे छोटे और देशों के भी थे, पर मुख्य रूप से जिन देशों के थे मैंने उनका जिक्र किया है। बांग्लादेश के प्रतिनिधि थे। हम लोगों ने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चिंता और उस एक्शन को हमने रिपोर्ट किया प्रतिनिधियों को।
कैसे विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश के हिंदुओं की पीठ पर खड़ा है, इसकी चर्चा हुई। एक प्रस्ताव हमारी जो परिवार की संरचना है उसके ऊपर पास किया था, उसकी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा और विधान परिषद के अगले अधिवेशन में सब एमएलए वहां पर आते, एमएलसीज वहां पर आते, उन सबको हम लोग मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे कि अपनी पार्टी को बताओ कि हिंदू अपने मंदिर तुम्हारे अधीन नहीं चाहता है सरकार की, ये मंदिर हमको वापस करो। ऐसा मुख्यमंत्री, एमएलए, एमएलसीज को मिलना, ऐसा सभाएं करना और बुद्धिजीवी लोगों की बड़ी गोष्ठियां करना, इस कार्यक्रम को 3 महीने में पूरा करके और फिर आगे का कदम सोचे। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कानून बनना चाहिए मंदिर वापस करने का, वो ऐसा नहीं बनना चाहिए कि पहले सरकार के कब्जे में थे, अब किसी और बॉडी के कब्जे में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए, ऐसा नहीं। प्रत्येक मंदिर को अपनी परंपरा के अनुसार चलने का पूरा अधिकार है। 2-3 बातें निश्चित है। मंदिर के लिए जो ट्रस्ट होगा, उस ट्रस्ट में भक्तों का पूरा समुदाय होना चाहिए और जरूर उसमें अनुसूचित समाज और बहनें, इन दोनों को भी शामिल करना पड़ेगा। हर मंदिर के ट्रस्ट में अनुसूचित समाज का भी कोई प्रतिनिधि और बहनों में से भी कोई प्रतिनिधि, ये जरूरी होगा। वो अपने पैसे को कैसे खर्च करें इसकी वो बजटिंग करेंगे, पर इस सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के काम में आएगा। हिंदू मंदिर के जो अर्चक पुजारी हैं और बाकी कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं करेंगे। उनका प्रशिक्षण की तो अनिवार्यता रखेंगे कि वो सीखे कि कैसे पूजा करानी है, मंत्र शुद्ध क्या है, मंत्र का स्वर क्या है, पर उनका वेतन कम नहीं होगा, भत्ते कम नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर वो वेतन और भत्ते वहां के मिनिमम वेजेस से कम हैं, तो फिर उनको बढ़ा करके मिनिमम वेजेस तक करना पड़ेगा। मुझे 2 बातें कहना है कि विश्व हिंदू परिषद का ये मत है, जिद से है कि जो लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको वापस जाना चाहिए। हम इसके ऊपर लगातार सरकार पे दबाव बना के रखेंगे, पर जिसको वापस भी जाना है उसकी भी कुछ प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, उसके भी कुछ राइट्स है, तो वापस भेजो, भेजना है तो। पर उसको हथकड़ी लगा के अपराधियों की तरह से रखना, उसका चित्र खींच के प्रचारित करना, ये ठीक नहीं है। हम अमेरिकन सरकार से अपेक्षा करेंगे कि जो लोग बेईमानी से या अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं, उनमें से जिनको वापस भेजती है, उनको सुविधापूर्ण ढंग से और बिना अपमानित किए भेजें।